ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا، فرشتوں کا سجدہ۔ اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ فرشتے شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے۔ دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے۔ اب ابلیس کھڑا رہ گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے، عزازیل، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے، لیکن سب ختم کر دیے گئے۔ نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں ابلیس، شیطان، اللہ کا انکاری۔ خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی، اسی لیے میرے عزیزو جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو۔ دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ، تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے، ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَاصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں یہ ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ مجھے پردہ کرنا اور للی کو 1200 کا ایسا سوٹ لا کے دے گا کہ جسے دیکھ کے خود کو بھی غیرت آئے گی اور دیکھنے والے کو بھی غیرت آئے گی۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ سارے پردے بیوی کے لیے، اور بیٹیاں ننگی کر دی شادیوں میں۔ حضرت مجھے تو تعجب ہوا، کسی نے انکشاف کیا اس بات کا کہ شادیوں میں دوپٹے لڑکیوں کے سر پہ کیوں نہیں ہوتے؟ لڑکیوں کے تو ہوتے بھی ہیں، شادی شدہ عورتوں کے تو بالکل نہیں ہوتے۔ تو ایک صاحب نے بتایا، تجربہ کار تھے، انہوں نے بتایا کہ میاں زیور اتنا پہن کے آتی ہیں اگر دوپٹہ اوڑھ لیں گی تو زیور چھپ جائے گا۔ جی بالکل۔ خیریت ہے آپ لوگ؟ ناراض تو نہیں ہے؟ چلو آگے تھوڑا سا۔ ہاں تو شادی میں اس لیے سر پہ دوپٹہ نہیں کہ وہ جو گلے میں پہن رکھا ہے زیور، اگر یہ دوپٹہ اوڑھ لیا تو زیور چھپ جائے گا۔ میری بیٹی آج تک کسی نواب کی بچی بھی قبر میں سونا پہن کے نہیں گئی ہے۔ بے شک۔ بڑے سے بڑی امیر شادی کو خالی ہاتھ قبر میں جانا پڑا ہے، جتنا چاہے سونا بنا لے
जितना चाके से पहन ले, जब कब्र में जाएगी तो सिर्फ सादे से कपड़े में लिपट के जाएगी। आज 10 तोले नहीं 50 तोला सोना पहन, इससे रुतबे बुलंद होने वाले, रुतबे बुलंद होने वाले। कितनी औरतें तो आदमियों की किडनी बिकवा चुकी सिर्फ गले के हार के चक्कर में। बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही लूंगी जो उसकी बीवी ने पहन रखा। मुझे सच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ ना, जिस आदमी की मजदूरी या एक दिन की कमाई 500 रुपए हो, वो अपनी बीवी को 50,000 का हार कहां से लाके देगा? मुझे बताओ तो सही। अपनी बेटियों को ये बात हम क्यों नहीं समझाते कि बेटी जा, जितनी तू शोहर की जिंदगी को आसान करेगी, अल्लाह उतनी ही तेरी आखिरत की जिंदगी को आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं बताते हो बेटियों से? ये बताने को तैयार ही नहीं, बल्कि कान में चाबी भर के भेजा, बोली सुन। खून तो पहले ही आ गया था रिश्ता होते ही, ये भी रस्म चल गई है। इधर रिश्ता उधर खून आ जा चुके थे डिब्बे। पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। हाँ हाँ बिल्कुल सही। यही है ना, पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। पता। बोलो यार, पता भी सबको होता है। अब्बा को ना पता, मेरे भैया को ना पता, भैया को सब पता कि मोबाइल किधर से आया है और कौन दे के गया है, और नतीजे क्या होते हैं नौजवानों सुनो। कभी कभार ऐसा होता है कि रिश्ते हो गए, 2 महीने गुजर गए, उन 2 महीनों के बाद समधियों में झगड़ा हो गया। ये केस हुए ऐसे, समधियों में झगड़ा हो गया, उसने कहा चल बे मैं बारात लेके नहीं आऊंगा बेटे की, उसने भी कह दिया चल मैं तुझे बेटी देने वाला नहीं। इधर झगड़ा हुआ और उधर जो है ना कह रही है मर जाऊंगी अगर तुम ना आए तो। अब इसने कही आपको जिंदगी दी है, हाँ, सारी जिंदगी बचाने का ठेका इसका। कह रहा टेंशन मत ले, अब्बा के मार गोली आ कहाँ मिलेगी, निकल ले रहे दोनों। ये होता है कि नहीं? बोलो, टेंशन हो रही है? कुआरे बोले ये बात गलत है कि नहीं? शादीशुदा तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये गलती कर बैठे क्या नहीं? खैरियत है आप लोग? खाना नहीं खा सकता है बिल्कुल। और अब जो वो चल गया ना हजरत, खड़े होकर क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, यस स्टैंडर्ड। और बफर सिस्टम, वो वाला कौन सा होता है? वो भी ऐसे ही होता है ना, है? कितनी अकलें मारी गई हैं। पहले इतनी इज्जत से मेहमान बैठते थे, घर वाले खिलाते थे। आज घर वाले खड़े, मेहमान ना, प्लेट हाथ में लेके खा कहाँ रहे हजरत? प्लेट भरने में झगड़ा हो जाता। वो हजरत इतने बड़े छोटे छोटे भगोने, प्लेट काय की फाइबर की, उसमें रख लिया। बिरयानी देखी, ओहो भाई मटन की है, भर ली। आगे चला तो कोरमा भी था, अभी रोट लिया। आगे सीख कबाब गिर गया वहीं कि जगह हो ना इसमें बुरक दे 4। हाँ, आगे फ्राई। अरे खाने से क्या मतलब भाई, अभी तो प्लेट ही भर रहा है। फ्राई और कोल्ड ड्रिंक का गिलास, अब प्लेट हाथ में, वो भी फुल, कोल्ड ड्रिंक का गिलास इस हाथ में, खाएगा कैसे? क्योंकि वहां बैठने का इंतजाम नहीं, बैठने का इंतजाम नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, और लोग उसी बंदे हो रहे हैं। बफर सिस्टम दिया भाई, खड़े होके खाना। इस कुत्ते डिजाइन को हम कभी पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। ये जानवरों का तरीका है। कह रहे आप 12 क्विंटल कोरमा उठा, क्या क्विंटल? 12 क्विंटल। कह रहा हजरत लाओ लाओ थी, लाओ लाओ, यही कह रहा लाओ लाओ थी। अमन थोड़ी पड़ रही थी, दे भगोने पे भगोना खाए जा रहे थे। तुम जानते हो 12 क्विंटल लगी। गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरे सर के ताज उलमा बैठे हुए हैं, मुफ्तियाने इकराम की पूरी जमात है। गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने लोगों ने 12 क्विंटल खा लिया है ना, उसी कितनी बारात को लाओ, नीचे जमीन पे दस्तरखान सुर्ख कलर का बैठा, सबको जमीन पे बैठा और सबसे कह बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करना है। एक पैर बिछाओ, एक पैर खड़ा करो, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शुरू करो। कसम खा के कहता हूँ, जितने लोगों ने 12 क्विंटल खाना खत्म किया है, उतनों ही से 8 क्विंटल खत्म नहीं होगा। ये जो कम पर लगा है, ये भूख की वजह से नहीं, लानतों की वजह से पर लगा है। तुम सुन्नत पे कायम हो जाओ, खुदा रहमतें बरसाना शुरू फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, ये जरूरी है। अच्छा पैगाम बेशक। क्या नाम है? जाहिदपुर। जाहिद। क्या नाम है गांव का? जाहिदपुर। अच्छा, एक वादा कर लोगे आज, जो भी बारात को खाना खिलाएगा बैठा के खिलाएगा, कर लेंगे वादा? हाथ उठाने कितने लोग वादा कर रहे हैं? हाँ जी ठीक है जी, तुमने उठा लिया। और जो खड़े होकर खाना खिलाए उससे कहना तू हमारे हुजूर के तरीके पे नहीं है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बाइकाट करो ऐसे जालिम जाहिलों का जो खाना कुत्तों की तरह खिलाने के आदी हो गए। क्या फर्क रह जाएगा हम में और गैरों में भी? हम भी गधों की तरह खाएं, वो भी गधों की तरह। कोई तो शादी में ऐसा तरीका रहने दो जिसे देख के लगे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मेहमान बन के आए हुए हैं। बेशक बेशक। हाँ, ऐद करे कि ऐसी बारात में जाना भी नहीं है। एक वक्त ना खाएंगे तो मर जाएंगे, सूख तो जाएंगे पक्का। हमारी बारातें अल्लाह माफ करे, ऐसी पैंट और पुट्टी कर करके बारातों में जा रहे हैं। हाँ, बड़ी कर्री पुट्टी हो रही है चेहरों पे। दूल्हा भी 3 दिन उपटन में से निकल थोड़ी गया, निकल लिया ना? नहीं ना, वो दुकान पे जाके पैंट करा के आता, उससे वजू कर तो कह रहा पहले ही कर लिया। मस्जिद में बगैर वजू के 2 रकात पढ़ जा, अरे कह रहा पहले ही कर लिया। तब सुबह और 2 रकात पढ़ कब रहा? 2 बजे। इसका वजू अब तक चल रहा। ये कंडीशन है। क्यों नहीं कर रहा? मुंह धुल जाएगा, क्रीम बह जाएगी। और सुनो, खूबसूरत बनना चाहते हो ना, जो दूल्हा बने ना उसे 10 दिन के लिए एतकाफ की नियत से मस्जिद में बैठा दिया करो। उससे कहो कि 10 दिन तुझे कुरान और दुरूद ही पढ़ना है। 20 दिन हल्दी में डुबा के रखो,
दूसरे बंदे को और एक को रखो मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत से, खुदा की कसम हल्दी से वो निखार नहीं आएगा जो मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत से बैठने में कुरान की तिलावत से चेहरों पे निखार आ जाया करता है। सुभान अल्लाह, बेशक गारंटी है मेरी। लेकिन इतनी हल्दी लगा के अदर तो फंदे भी पहन रहा पीले वाले, ये पर्दे का कलर है ना, पूरा घर पीले कपड़े पहन रहे हैं सब। बरसों पे पैसे उड़ाने वालों, कभी माँ बाप के कदमों पे भी पैसे निछावर किया करो, बेशक बेशक, कभी उनके सर से उतार के उनकी गोद में डाला करो, और कभी कहा करो जब हम छोटे थे तूने हमें दौलत में खिलाया है, अब हम बड़े हो गए हैं हम तुम्हें दौलत में खिलाएंगे। सुभान अल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह ये, इंशाल्लाह, है ना। वरना मैं पूछ लूंगा किसी से भी कि तुम्हारे गांव के अंदर बाप के मकान कच्चे ज्यादा है या औलाद के मकान ज्यादा कच्चे। अल्लाह ना करे कि औलाद के मकान पक्के ज्यादा हो। हम तो गलती करते हैं कि जिस मकान को पूरी जिंदगी बाप ने बनाया होता है उसी बाप को उसी मकान से मार के निकाल देते हैं। उसे कहते हैं चल भाई चल तू अलग जा, हम इसमें रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा सुनो, मैं एक पहचान बता जाऊं, खुद देख लेना। सब कहते हैं मैं अपने माँ बाप की फिक्र करता हूँ, कपड़े देखने में तो सबके ही पता लग जाते हैं। किसी बाप की चादर में बीड़ी के 6 सुराख हो और बेटे की शॉल में एक भी सुराख ना हो, समझ लेना इसके घर में बाप की इज्जत नहीं है। एक मिसाल और देने लगा, बाप से पूछोगे औलाद कैसे रखती है, वो कहता जी जैसी मेरी औलाद अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे, बड़ी खिदमत करते मेरे बेटे। लेकिन सच कब पता चलता है, जब कहीं चौक में आग लगी हो, आग पे हाथ सेकने वाले लोग उठ के चले जाएं, अगर कोई बूढ़ा पूछी राग में बैठा मिल जाए तो समझ लेना इसके घर वाले इसकी इज्जत नहीं करते। समझ गए ये जुमला? राख बुझने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा राख के सहारे बैठा है ना तो समझ लेना इसका बेटा इसका ख्याल नहीं रखता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अब मैं बेटों से कहूंगा, अगर दुनिया और आखिरत में अमीर होना चाहते हो तो माँ बाप की फिक्र करना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे खजाने भरना शुरू कर देंगे। बेशक, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, करेंगे माँ बाप की कदर इंशाल्लाह। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा इतना ही सबक काफी है कि उसमें आपने ये हुजूर की नाम की महफिल सजाई है। आज साहिब मजार के भी हाथ उठते होंगे बार बार और वो कहते होंगे मालिक इस जमात को सलामत रखना जिसने उर्स पे शैतान के तरीके निकाल के मदीने वाले की बातें की। सुभान, इंशाल्लाह। हाँ समझ रहे ना मेरी बात? आज साहिब मजार भी कह रहे होंगे अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखना जिसने ढोल तमाशे बंद करके मदीने वाले की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। आज साहिब मजार भी कहते होंगे आज इस महफिल में खातून जन्नत का जिक्र हुआ है, आज सैयदा खदीजा का जिक्र हुआ है, आज आयशा सिद्दीका की बातें हुई हैं, आज मदीने वाले की बातें हुई हैं, आज हुजूर का दीन लोगों तक पहुंचाया गया है। 1450 साल पहले जो पैगाम मेरे नबी ने मक्के से फैलाया था आज फिर से उसी पैगाम की तशरीह हो रही है, फिर से वही पैगाम पहुंचाया जा रहा है। आज साहिब मजार भी दुआएं देते होंगे और देखना जाहिद वालों हर साल से ज्यादा अगर बरकतें मिलना शुरू हो जाए तो नाम बदल के रख देना, इसलिए कि हमने सुना है उलमा ने फरमाया है जिस जमीन पे मदीने वाले की बातें होती है अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिश से फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। होंगे इंशाल्लाह जलसे आगे को, इंशाल्लाह, जलसे कराओगे इंशाल्लाह, हम आए या ना आए, लेकिन जलसा हुजूर ही का होना चाहिए। इंशाल्लाह, किसका जलसा होगा? वादा करो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया अच्छा किया कि गलत? अच्छा किया। क्या किया है? जोर से अच्छा किया है ना? तो दुआ करें अल्लाह करे क़यामत तक किसी तरह हुजूर की महफिल सजती रहे। आमीन, बोलो आमीन। आमीन। अब मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं, जी पढ़ दूं शजरा बिल्कुल। है? लेकिन देखो जी मैंने आपसे ना हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब चाहता हूँ आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, जब मेरा हाथ का इशारा होना सुभान अल्लाह। क्या बोलेंगे? डंडी ना मारना, कहीं सोचो मौलवी शुरू हो गया आप पे बैठे, ये तो पढ़ के ही रुकेगा नहीं, नमाज जनाजा नहीं है, जी ये पूरी करके रुकूंगा। जहां तक साथ दोगे वहां तक मैं बोलूंगा, वरना फिर जगह नमाज जनाजा की है। ठीक है जी, मरोगे तो जगह गवाही देगी, एक दिन यहीं बैठ के हुजूर की बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ मैं देख रहा हूँ नौजवान मेरे सामने ज्यादा बैठे, लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। इस महफिल में जवानों की कसरत देख के मैं कह सकता हूँ जवान दीन से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है ना? कई बार ना मेंबर पे कहते अजी तमाशा हो रहा होता तो इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़ होती, नाच हो रहा होता तो इतने लोग होते। कसम खा के कहता हूँ जितने चाहने वाले आज भी हुजूर के हैं उतने चाहने वाले आज किसी के नहीं है। बेशक बेशक, हक बात सच्ची है कि नहीं है? और एक फर्क और है, जो नाच देख के जामे उनका सुबह को मुंह देखो ऐसा लगे किसी ने चप्पल फेरा। बिल्कुल हक बात। और जलसा 4 बजे तक सुनो और जब भी उठोगे ऐसा लगेगा जैसे अभी मूड होके आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये कितना खुला फर्क है दोनों चीजों में, है ना? तो अब जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से ना बोलो कि कहीं मुझे बुखार आ जाए। और सुनो जोर से सुभान अल्लाह कहने वालों को पुलिस पकड़ती नहीं है, जी तुम्हें भी नहीं पकड़ेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। है ना? बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये टैप इतना अच्छा मारा हमारे साहब ने, टैप मारा ठीक है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डंडी ना मारना, सिर्फ बच्चे मेरा साथ दे, बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चे अच्छे तो बड़े भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। है ना? हुक्म है कमेटी वालों का हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है ना? देखो भूलना मत, सुभान अल्लाह कहते रहिएगा।
میں سبحان اللہ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ تم سبحان اللہ کہو، میں چپکے سے سانس لے لوں. چھوٹی چھوٹی سانس تو میں لے لوں گا، بڑی سانس لینی ہوگی تبھی میں تم سے سبحان اللہ کو کہوں گا. جی تم سبحان اللہ کہو کہ میں سانس لے لوں گا، تمہیں بھی نیکی مل جائے گی، اللہ راضی ہوگا تو اپنا بھی کہیں نہ کہیں کام ہو ہی جائے، ہے نا؟ ہاں اب بولو ذرا زور سے. سبحان اللہ. ادھر دیکھو ٹریکٹر آ رہا ہے، رافیل نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے بولے ذرا، کتنی زور سے بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. سبحان اللہ. آپریٹر صاحب بخار آ گیا کیا؟ اس کو تھوڑا سا ایکو دے دو. بڑا چلاک ہوتے ہیں آپریٹر. مولوی شروع ہو گیا، آنا ہے یہ لے.